चलो क्या ओके डन कलर टोन बस आपण चिपक गए ना शॉर्टेज है ना हेलो हेलो पीछे नहीं थोड़ा सा ये ऐसा ले लेंगे हेलो जस्ट होल्ड आउट जस्ट होल्ड आउट ओके थैंक यू 16 हो जाए मैडम 16 एक एक जन इधर आ जाओ ना सर इधर आ जाओ यहाँ देखिए सामने सामने देखिए राइट साइड चलिए डन ओके एक 16 है मैम हट जाओ यश यश हट जाओ यहाँ लो यहाँ सेंटर में यस राइट साइड हेलो वेलकम हो गया चलो डन थैंक यू I think my character, Vedai's character, which I heard this narration and I was like, okay, this is what I want. Sorry?
Because I've done that. I've been there before. So now I want to do something which is really performance oriented and which I really enjoy playing. So I couldn't really hope for a better break than this. मेरे लिए, I think you were talking about the story of the film. I guess the highlight point would be when Chintan comes back in her life and makes her realize that that what are you doing? You're living a lie. So try to break free, come out of it, and live your own life. My ideology when it comes to women is, first of all, I believe in one thing, that live and let live. Man or woman doesn't matter. But I have always been very independent, very strong-headed, and my family has always supported me. So I just hope that whoever wants to do whatever, do that, and I hope that their family also supports them the way mine do. Done? Thank you. मैं कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जो है ये योगेश जी ने बनाई है, योगेश जी ने डायरेक्ट की है। सो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि उन्होंने ये फिल्म बनाई। और इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो एक मैच्योर लव स्टोरी है और शिमला की कहानी है, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं उसमें एक बहुत ही पीसफुल महसूस कराने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और ऐसी फिल्में जो हैं अभी मुझे लगता है कि अभी कॉमेडी और लव स्टोरीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जैसी दिमागी हालत है वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है वो हंसेंगे और खुश होंगे तो ठीक हो जाएंगे। सो ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसके अंदर रोमांस हो, कॉमेडी हो, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बननी चाहिए। तो इसके अंदर एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो गौरी प्रधान है और हितेन तेजवानी है, हितेन जी के साथ में मैंने अभी लास्ट एक फिल्म जो है अजय वर्धन, उसके अंदर मैंने उनके साथ काम किया था। और सॉरी शतरंज में किया था, एक सॉन्ग किया था मैंने अक्कड़ बक्कड़। और उसके बाद में ये जो फिल्म है इसमें गौरी प्रधान जो सीरियल जो सीरियल में काम करती थी, पहले मैं उनका सीरियल देखती थी और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे आज उन्हें देखने का मौका मिला, उन्हें मिलने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी। और मैं आई विश कि उनकी फिल्म सुपर हिट हो और वो तरक्की करते रहे। आई एम जस्ट हियर टू प्रमोट गौरी प्रधान्स मूवी and best of wishes, best of luck everyone. Thank you. Yeah, I'm very happy. It's a dream fulfillment for me. Excitement level is normal because at my age I can't get excited about things, but I'm deeply satisfied. Very happy that this day has come. A lot of people in my team, my actors, they all work very hard, and I'm sure it's a day of celebration for them. Yes. You see, I wanted to bring out the concept of what we call as classic love. Classic love is an idea very different from what and how we look about love now in the present generation. Classic love has elements of separation, elements of sacrifice, elements of... The basic idea is that प्यार हुआ तो मतलब मैं आपको सब समर्पित है, आपसे कुछ हासिल नहीं करना है. There are no claims in love. There is only a desire to give the best to the other person so that the other person can flourish and enjoy and be happy. It's not what you want from the person, what you want to give to the person. तो ये classical concept of love in the modern times is getting lost. तो उस तरह का एक संदर्भ बनाने की कोशिश करिए. It has come out beautifully. The story is shortly we're going to watch it. I don't want to
हाँ वो तो देखिए, when you want to do something then you have to put your best, and for best is your time, your money, your wealth. मुझे काम करना था और पूरी लगन से किया, बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया इसमें, and it's been a project of passion and nothing else. तो हमने जितनी भी पूरी टीम थी सबने आगे बढ़ के बहुत क्रिएटिव भी काम किया, और उसका रीज़न ये भी था कि मैं एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर I was not so hands-on. I let all people, all the technical as well as the actors, complete freedom to explore their art, and what comes out is very magical. I'm sure you will, after you've seen it, you will agree with me that it's a very different story than, or a different type of movie. It's more of a counter trade. मध्यम चलने वाली फिल्म है, लेकिन कहानी फिर भी बहुत एनग्रॉसिंग है। एक सेकेंड भी आपका दिमाग कहानी से पलट नहीं सकता, बट एक सहज पिक्चर है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आई मीन आर पूरे जनरेशन फिल्म आर फुल ऑफ थ्रिल, एक्साइटमेंट, सो दिस इज़ नॉट हाई ऑक्टेन ड्रामा, दिस इज़ वेरी सटल ड्रामा। Thank you. Now that we have done our job, it's for the people to acknowledge it, and I'm sure it will give happiness to each one who watches this movie. It's a movie full of very soft and sweet feelings. Thank you so much, everybody. God bless you all. You all know him, famous, popular face. She's always been, right from the beginning, if you see what projects she's done, she's always been very choosy. And because क्या है कि उसको easy है, मतलब in the sense, not in a bad way, but because I am doing multiple subjects and everything, she has that thing to choose, and she chooses what she likes. ये स्क्रिप्ट आई योगेश जी की, उसे पसंद आई, उसने मेरे साथ डिस्कस किया, बोला देखो ये मुझे अच्छा लगा। बोला अच्छा लगा तो 2 बार सोचना मत, डोंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस ऑल्सो, गो फॉर इट। इस फिल्म की जर्नी पूरी मुझे पता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो एवरी डे व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हाउ दे वर शूटिंग एंड क्या क्या हो रहा था, वो सब पता है। ऑल इन ऑल गुड पार्ट इज दैट शी वाज टेकन केयर ऑफ एंड शी हैड अ ब्लास्ट, शी enjoyed while shooting, so that is all what it matters, you know. You have to work also and then you have to enjoy. It was like a family over there. She said बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, shooting is on time, everything is happening on time, and we'll wrap up also on time, so it is perfect. Everything is scheduled, everything is planned, so Yogi ji took care of her. Thank you so much. Thank you. I have seen in bits and pieces, I will not lie to you, but now I was saving it for the last. इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि आज सबके साथ देखूंगा, बिकॉज अगर मैंने पहले देख ली होती तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा तो कम होता, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, कि आप जितनी बार देखते हो आपका इंटरेस्ट। तो आज मुझे पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे सब लोग के साथ एंजॉय करनी है, दैट्स व्हाई आई सेड कि चलो आज तो देखेंगे। वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैंने इनको भी बोला, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। म्यूज़िक लॉन्च पे बहुत कुछ देखा, उसके अलावा घर में बहुत कुछ इन्होंने दिखाया हमें, सब कुछ फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, इट इज़ डिफरेंट। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट व्हेन एवरीबडी विल वॉच इट दे विल कम टू नो व्हाई इज इट कॉल्ड डिफरेंट। यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए गौरी की फिल्म ज़रूर देखिए। शी हैज़ यू नो शी इज़ डूइंग दिस फिल्म, डेब्यू है एक तरह से, तो शी इज़ डन इट, एंड देखिए गौरी के लिए हमने अपनी फिल्म पोस्टपोन की है, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा आप। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, God, thank you. Come. I wouldn't have missed it actually, but I was not sure about it. Hi everybody. Hi. Hello, namaskar.
Ma'am, if you don't mind, I request you to just be a little louder because there's so much noise. Can't hear what you're saying. Yeah. Well, योगेश जी has made the film. इन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है because इसमें रियलिटी बहुत है and it's actually a love story. चिंतन और वैदेही की प्रेम कथा है और उसमें मैं शामिल हूँ क्योंकि मैं किरदार निभा रहा हूँ जो कि नवीन शेरगिल है, जो कि चिंतन का बहुत ही अजीज़, बहुत ही सगा मित्र है और वो भी उसकी तरह काफ़ी एजुकेटेड है और शिमला इज़ हिज प्लेस. सो मेरी वजह से ये फिल्म जो है शिमला में शूट हुई है. करेक्ट. मतलब हाँ, नवीन की वजह से. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक ऑनेस्टी वाली फ्रेंडशिप होती है और एक डिसऑनेस्टी वाली होती है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एंड हमारी इंडस्ट्री में जो सेकंड कैटेगरी वाली फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा है. इस फिल्म में चिंतन और नवीन के बीच में बहुत ही रियल फ्रेंडशिप है. एग्री ना? दे आर वेरी रियल विद ईच अदर. तो कुछ ज़्यादा बनावटी बातें नहीं होती और उसी में मज़ा है जो मैंने इन्जॉय किया. एंड ऑफ कोर्स इज डायरेक्शन एंड वर्किंग विद इंद्रनील एंड गौरी वाज वेरी नाइस. Challenging in what sense? Okay, yeah, well, I find every role I do challenging, and luckily God has been very kind to me and has given me various roles to do. First in theatre, then in television, and then since I left television, in films and web stories and all. So every role is challenging. I feel that the best benefit of an actor, एक एक्टर की सबसे फ़ायदेमंद खूबी ये है कि वो हर एक रोल को एक चैलेंज समझे, लेकिन एक ऐसा चैलेंज जो कि आपको पता नहीं कि फिनिशिंग लाइन कहाँ है, लेकिन आपको पता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो. फिर आप चल क्यों रहे हो, भागो भागो, वो फिनिश लाइन आपको दिख जाएगी. तो यही मेरी वे ऑफ थिंकिंग है, मेरी सोच है. एंड आई हैव ट्राइड टू डू द सेम थिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी विद नवीन शेरगिल. Oh, he is amazing. Very shortly we're going to watch him. I had for years his image picture in my mind, and he was. I didn't have to go to anybody else. Already I had set up my mind that he will do this role. Because he is a theatre guy originally, and I'm a theatre guy, so connection. Your message. अच्छा जी, ऑडियंस के लिए मेरी वही मैसेज है जो इतने सालों से मैं लगा रहा हूँ. बहुत बहुत प्यार आप सबका मिलता रहता है हमें और उसी के मुताबिक हम जी रहे हैं, उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं और आपको बेहद प्यार करते हैं. और मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं जो लव स्टोरीज़ हैं, और ये जो फिल्म है शायद ही कोई ऐसी फिल्म पहले बनी हो जिसमें फैनफेयर और धमाकेबाजी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रियल है. और आई थिंक सरल बात तो ये है, ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है. इफ़ यू लव समवन यू लव समवन. सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस मेंबर्स लव समवन और आर लव्ड बाय समवन, एंड आई होप यू फाइंड योरसेल्फ इन द स्टोरी समवेयर. Very well spoken. Thank you. Thank you. Yes. Good. Enjoy the film, guys and girls, and thanks for coming. बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबान. आप आए हमारी फिल्म के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज़. आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है. मैंने काम तो बहुत फिल्मों में किया है, लेकिन ये विंटर टेल एट शिमला हमारे योगेश सर ने जो फिल्म बनाई है
इतने अपने पूरे जीवन में जितना इन्होंने काम किया, जो पैसा इन्होंने कमाया, वो सारा इस मूवी प्रोजेक्ट में लगा दिया है। योगेश जी की हिम्मत है कि जॉब पूरा करने के बाद ये फिल्म के लिए सोचा, बनाई, रिलीज़ किया और आज PVR हम सब लोग इकट्ठे हैं। मुझे वो दिन याद है जब हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे, तो सर ने ऐसा कोई भी नहीं था क्रू या एक्टर जिनको किसी भी तरह की कोई शिकायत हुई थी। बहुत ही भले इंसान और बहुत ही तबीयत से इन्होंने मन से काम किया प्रोजेक्ट पे, और मुझे उस बात की उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, ऑडियंस इसको पसंद करेगी और लोग आएंगे देखने के लिए। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए और ऑडियंस से दुआ करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आएँ, हमारी ये फिल्म को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ के बोली पागल वो खड़ा कर देती, आप बाइट दे रही, हम बाइट क्या देंगे। बाइट ले लो। बोलिए। समर में विंटर टेल, so it's like ठंडक, बहुत बड़ी ठंडक है in this summer, and we felt all the best to Gauri, Jiten and all the cast and crew, Deepraj and all the cast and crew. I'm sure it will be a good movie to watch. It will be like we'll be glued to the seat, and all the best. No success to them. Well, मैंने अभी हाल में योगेश जी से मिली, he was a very sorted person and I think it's a good direction that he has done, and I still have to watch the film, so let me watch the film to say anything more about it. But in this summer I need this winter, and that's in Shimla, that's what I'm looking for, and I think it's a thriller, so I have already goosebumps, so let's see how that. I wish all the very best to everybody. Fun to watch the thriller movie. Yeah, so in summers and the winter tales, it will be fun also. I know. All the very Okay, best all to the best. everybody. Thank you. Thank you. डॉक्टर एस के त्यागी से, तो इनके बारे में विशेष ये है कि डॉक्टर एस के त्यागी एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, दुनिया में अपना नाम रखते हैं एज अ हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक बोल रहा हूँ, हेपेटोलॉजी। तो ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे कहीं मिले तो एक कैरेक्टर जैसे मुझे लगे, मैं इनसे पर्सनली इनको जानता था, तो मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा आप एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का रोल करना है। तो इनके फैमिली, ये पुलिस फैमिली से हैं, ऑल द डॉक्टर हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी पुलिस फैमिली, पुलिस बिहेवियर देखा है, तो डॉक्टर साहब मान गए। तो इस वजह से हिंदुस्तान में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खूब इस फिल्म को आगे बढ़ा रही है, वो एडवांटेज मुझे उस समय पता नहीं लगा था कि डॉक्टर साहब को लेने का ये एडवांटेज होगा कि हिंदुस्तान का हर डॉक्टर तो पिक्चर देखेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं क्या बताऊं, मैंने जब यस बोली थी तो सिर्फ इसलिए यस बोली कि मैं देखना चाहता था फिल्में बनती कैसे हैं। मैं एक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये तो योगेश जी बताएंगे, और जो आप देखेंगे आप लोग तो बताएंगे कि जो भी छोटा सा रोल मेरा है वो मैंने सही निभाया है या नहीं। लेकिन इनके साथ रह के पूरी फिल्मिंग देख के ये पता चला कि जो हम पर्दे पे देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। वो वाकई में बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी पिक्चर को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बिना ये जान के कि उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लोगों की मेहनत लगी हुई है। ये मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कि आप किसी का अब कोरोना काल में आपने किसी का, हम लोग डॉक्टर्स ने किसी को ठीक कर दिया तो लगता है 4 गोलियां दी और वो ठीक हो गए। ये नहीं पता चलता कि कितनी रातें हमने उस मरीज़ के बारे में सोच के काटी और कितनी मेहनत करी और कैसे करी। बट इट वॉज फन, इट वॉज प्लेजर,
इन सब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी इस माहौल में रहा नहीं, कभी मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ सीखा बहुत। और योगेश जी जैसे अगर साथी हों तो क्यों नहीं कोई इंसान सीखेगा। थैंक यू सो मच। नीचे पिक्चर आ जाएगी। थैंक यू। Thank you, everybody. You give a bite or two? यस यस प्लीज। तो ये मूवी के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड है, बिकॉज ये मूवी को शूट करने में भी हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया था, एंड इट वाज अ फन जर्नी ऑल टुगेदर, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर द फिल्म। Oh, no, it was a lovely experience. I've known Mr. Verma for 5 years, first as a theatre actor, and to work with him and to see what he's created and to have the privilege of working with him as a director, it will be an experience I will always remember, and it was an honor to be working on this film. I'll start. Yogesh sir was like fantastic director, very smooth sail, like ऐसा नहीं कि एकदम pressure है, the story, the way he was explaining things was very fantastic. Oh no, the writing, the script writing was spectacular. The characters all had their unique way of guiding the story. So it was more of a story, it's a journey for all of us, and again, honored to be part of this. Thank you. Thank you so much. Yeah? Yeah, I'm really looking forward to this. Gauri is a part of this. Gauri is a close friend, and we've come to support Gauri and obviously Parul. So it makes it even more special. हाँ जी जी, योगेश जी से मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव और इमोशनल आदमी है, एंड ही इज़ गिवन इट हिज बेस्ट. सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म सो दैट मुझे पता चले कि असली में वो कैसे हैं, एंड देन उनसे मिलना होगा. जी हाँ, मेरी अभी इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, वेटिंग फॉर दैट. नीरज पाठक सर की है, रणदीप है, मैं हूँ, अभिमन्यु सिंह है, अमित सियाल है, उर्वशी राउटेला है. सो एक वो है, एक मंडली है, एक बगावत है, तो 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं. आई एम वेटिंग फॉर दैट. थैंक यू. थोड़ा ज़ोर से बोलिए. हाय, मेरा नाम राम अवाना है और मैंने काफ़ी फिल्में और काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, आप लोगों ने देखे होंगे. ये फिल्म शिमला बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी हम लोगों ने शूटिंग भी शिमला में ही की थी और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था. मेरा इसमें जो कैरेक्टर है वो हवलदार सुरेंद्र का है, जो दीपराज राणा जी के साथ में है. सुरेंद्र जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने मालिक के लिए तो बहुत वफादार है, लेकिन बाकी लोग उसके घर में जो लोग हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते ज़्यादा. तो जो गौरी प्रधान और उनकी बेटी वो कुछ बात करते हैं तो रुक जाते हैं, किसी सामने बात मत करो, ये सर को बता देंगे. तो ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है काफ़ी, तो होप आप इंजॉय करेंगे. ये मेरा नाम मनु मलिक है, मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं, फिल्म्स भी की हैं, कुछ वेब सीरीज़ की हैं. मेरा इसमें रोल है एसएसपी धालीवाल का. तो धालीवाल जो क्या है वो बहुत एक जुगाड़ू आदमी है, तो ये पॉलिटिशियंस और अपने पुलिस वालों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है. तो वही सब किस तरह से उनको मिलता है और कैसे चीज़ें काम करवाता है अपने, तो वो सब आई होप यू एंजॉय. प्लीज़ देखिए और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी. बहुत प्यार से बनाई है सर ने, बहुत हमारे योगेश शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत. थैंक यू.
अरे वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड. मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, सो आई जस्ट क्विकली रन, डू दिस एंड रन. आपका किरदार बहुत अच्छा है इसमें, गोनी प्रधान का थोड़ा बचपन का किरदार है आपका. जी. क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? मैंने एक दो बार पहले भी कहा है कि बहुत ही वार्म कैरेक्टर है. जो भी स्मॉल टाउन से लड़कियां आती हैं हमेशा दे कैन रियली रिलेट टू दिस कैरेक्टर एंड दे विल बी एबल टू सी देमसेल्व्स इन दिस कैरेक्टर. सो प्लीज़ वॉच द फिल्म बिकॉज यू आर गोइंग टू रियली कनेक्ट विद इट. और योगेश जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह के राइटर और डायरेक्टर हैं? योगेश जी बहुत ही थॉटफुल डायरेक्टर हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है, एंड स्पेशली ही इज़ मेकिंग अ फिल्म ऑन विमेन एंड हाउ दे फील एंड देयर जर्नी. सो ही इज़ वेरी सेंसिटिव एज वेल. So it's been an amazing journey with him and I hope that this journey continues through other work. Thank you. Thank you. Okay, thank you. सर हैं वो 65 ईयर ऑफ एज के बाद उन्होंने डेब्यू किया है. सो येस ऑफ कोर्स वेरी गियर्ड अप टू सी द मूवी. डायरेक्टर के साथ ही साथ राइटर भी है और इतना प्यारा स्टोरी लिखे. क्या कहते हैं कि जब पैशन होता है ना, किसी भी काम को आप करते हैं और पैशन से करते हैं तो वो बहुत अच्छा ही होता है. तो ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर भी हैं. तो फिल्म तो बहुत अच्छी है ही है और एक बार देखते हैं तो फिर रिव्यू करेंगे कैसी है फिल्म. What he has created, Winter Tales in Shimla, is something which is as exciting as Yogesh ji's journey. So I'm looking forward. I'm sure whatever he would have created must have been a masterpiece. Thank you, sir. Thank you. सबसे पहले तो मूवी से पहले मैं योगेश जी के बारे में बोलना चाहूँगा. वो एक टेक्नोक्रेट हैं, बिट्स पिलानी पास आउट हैं, बहुत बड़ी कंपनी के रियल एस्टेट एम्पायर के को बनाने में उनका योगदान रहा है. वो सब उनकी लाइफ का एक दूसरा हिस्सा है. अब क्रिएटिवली बड़ा मुश्किल होता है, बहुत करेज चाहिए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी टू क्रिएट समथिंग विच इज़ नॉट इन योर डोमेन. उनके स्फीयर से बिल्कुल बाहर हट के कुछ बनाना बहुत ही कमाल का जज्बा है और इंस्पिरेशनल जज्बा है. इसको कहते हैं हम जेन्युइनली, जिसको कहते हैं कि पैशन को नर्चर करना, नर्चरिंग योर पैशन. ओके, ही इज़ क्रिएटिवली गिफ्टेड और इस तरह के लोग जो है ना वो जनरली मास्टरपीस ही क्रिएट करते हैं. सो शिमला, विंटर टेल्स इन शिमला, अभी पहला हाफ जो है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है. उतना ही इंटरेस्टिंग जितना योगेश जी की जर्नी है. और आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाफ. आई एम श्योर इट विल बी इक्वली इंटरेस्टिंग. बट मुझे तो एक्चुअली सारे किरदार जो उन्होंने निभाए हैं, उन्होंने जो चूज़ किए हैं एक एक रोल के लिए, इससे परफेक्ट, इससे कमाल की, इससे नेचुरल कास्टिंग हो ही नहीं सकती. सो हैट्स ऑफ टू योगेश जी. ही हैज़ मैनेज्ड टू पुट अप फैंटास्टिक शो. और अब सेकेंड हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. देखते हैं क्या ये उतना ही होल्डिंग, उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना फर्स्ट हाफ है. बट आई एम प्रीटी श्योर लुकिंग एट द फर्स्ट हाफ जर्नी इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. योगेश जी के एफर्ट के लिए अगर मैं 10 दे सकता तो शायद कम होता वो 5 में से. लेकिन yeah, for sure, for technical reasons, for Yogesh ji's effort to be able to put up this entire project 5 on 5. फिल्म को अभी तक थोड़ा अर्ली होगा बोलना बिकॉज फर्स्ट हाफ देखा है. I would like to give about 3.5 kind of a rating. Yeah. एब्सोल्युटली ग्रेट. जैसे मैंने जाने से पहले कहा था कि आई जस्ट वांट टू वॉच द मूवी एंड देन विल लेट यू नो. तो एब्सोल्युटली अमेजिंग. जो उन्होंने इमोशंस को इस फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है और बड़े तरीके से उन्होंने कुछ ऐसी सीख, कुछ ऐसे थॉट्स लोगों को देने की कोशिश की है
एज डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत बहुत ब्रिलियंट है। और मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे अपील करूँगा कि ये फिल्म एब्सोल्युटली देखें, क्योंकि फर्स्ट हाफ जब किसी फिल्म का इतना ग्रिप ले लेता है तो सेकेंड हाफ 100% बेटर होता ही है। तो 100% येस, ऑफ कोर्स, फॉर मी 5 out of 5। The best thing about the movie is that it has got a female protagonist. आजकल इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बनती नहीं है जिसमें थीम जो है वो हीरोइन के अराउंड होती है, हीरोइन। सो दैट्स वन थिंग दैट आई लाइक, एंड इवन द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर, वो किस तरीके से अपने परिवार के लिए, अपनी बच्ची के लिए खड़ी रहती है। सो आई थिंक it's a must watch. It's a very different film and it's a interesting film to watch. Thank you. आपको कैसी लगी? अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कट है। डायरेक्टर ने बहुत पैशनेटली और उन्होंने बहुत एफर्ट डाला, पूरा टीम का एफर्ट है। एंड आई थिंक ही हैड डन अ वेरी गुड जॉब कंप्लीटिंग द फिल्म एंड नाउ वी आर सीइंग इन द पीवीआर डायनामिक्स। वेरी गुड, हैट्स ऑफ। ज़्यादा अच्छा किसका काम लगा? पूरा तो फिल्म अभी तक ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तक आई थिंक जस्ट स्टार्ट हुई है। सो मे बी एक बार पूरी फिल्म देखने के बाद ही। फिर भी शुरुआत में सबसे अच्छा काम किसका? वैसे ही उनका काम बहुत अच्छा है। डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, आई थिंक वेरी गुड एफर्ट एंड या ग्रिप है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 5। It's been a good movie. It's a good movie. किसका काम अच्छा लगा? हाँ, सबसे अच्छा काम किसका लगा? सबसे अच्छा काम वही जो लीड रोल है जिनका। शी इज़ अ गुड एक्टर एंड ओवरऑल लाइक एवरीथिंग इज गुड, ऑल हैव डन अ गुड जॉब। डायरेक्शन, सॉन्ग्स, डायरेक्शन इज अमेजिंग। मे बी आई होप ही विल डायरेक्ट सेकेंड मूवी विच शुड कम सून, आई थिंक सो। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? Out of 5 is like 5 out of 5 is out of 5. That's it. आप कौन सी मूवी देखते हैं? शिमला एट द विंटर। कैसी लगी? बढ़िया है, अच्छा है। सबसे ज़्यादा किसका काम पसंद आया? जो मेन लीड है गौरी, शी इज़ डूइंग फाइन, शी इज़ डूइंग गुड। डायरेक्शन कैसा था? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सॉन्ग उदित नारायण का एक है जो बहुत ही बढ़िया है, जो डेली लोग सुन सकते हैं, ऐसा गाना है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5। Thank you. Tale in Shimla and very interesting movie. अभी तो intermission है. Hi, I'm Major Aditi from Bangalore and in fact one of the roles is being played by my Jade. So I feel कि अच्छी natural acting है and North की acting है. थोड़ा सा love twist है. So let's see if it comes out to be a real, and I wish Gauri and I wish the entire team, I wish Mr. Yogesh all the very best and congratulations कि बहुत अच्छी मूवी बनाई है। काफ़ी कहते हैं ना जैसे एक नॉर्मल आदमी रिलेट कर पाता है, एक आम जिंदगी जैसे होती है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन अच्छा था एंड स्पेशली जो द क्लोजअप्स जो लिए गए हैं सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, एज आई सेड इट्स वेरी नेचुरल, सो आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे आप? सॉरी, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? अरे 5 के 5 पूरे ले लो। थैंक यू वेरी मच। अच्छी है, हाफ वे डन। हमने अभी आधी मूवी देखी है, बट इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मेरी भाभी ने बोला कि एकदम आम आदमी जैसी है, रियल लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग एंड यस, मेरे तो बड़े भैया हैं, ही इज़ डन द रोल, तो नाइस। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश द मूवी ऑल द बेस्ट। सबका काम अच्छा लगा, आई थिंक सबके अपने अपने रोल्स हैं, सब अच्छे हैं। आई मीन दे आर ऑल डिसेंट, वेरी डिसेंट, वेरी वेरी हम्बल। हाँ, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे आप? ऑल 5। हम कौन सी मूवी देख के आ रहे हो पहले? This one? Oh no, not this one. Right here, A Winter Tale at Shimla. Okay, बहुत अच्छी लगी, especially because I am from Shimla also, so that was a good walk down the memory lane. But abhi half the movie is over. Very nice movie. I think each characters played their role really well, very intense. He's kept it very realistic. कि यंगर जो है वो अलग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं एंड ओल्डर वंस आर डिफरेंट एंड आई थिंक इट्स गॉट द लव स्टोरी, इट्स गॉट ह्यूमन इमोशंस एंड
and also real issues that happen, you know, marriages or whatever, and relationships. So very nice. डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. कितना स्टार देना चाहोगे? हाँ जी. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे आप? Out of 5. 5. Yeah, 10. I'll give it 5. Yeah.